بات سنیے، آج میں کہتا ہوں قرآن کریم میں یہ ہوائی جہاز کا چرچا موجود ہے، ٹرین کا چرچا موجود ہے، پلین کا چرچا موجود ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ چونکہ اس کی تاریخ تو 500 سال پہلے پلین نہیں تھا. پلین تو 1903 میں امریکہ کے رائٹ برادرز نے بنایا. آپ کہیں گے صاحب یہ موٹر کار کی ساری تاریخیں 100 سال کے اندر کی، 150 سال کے اندر کی، 200 سال پہلے تو موٹر کار نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، راجدوت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ویگیانکوں نے آج ترقی کر کے دماغ چلا کر کے تب نئی نئی چیزیں دنیا کو دی ہیں. جے ایل بیئرڈ نے ٹیلی ویژن کا فارمولا آج دیا ہے، ہنری فورڈ نے موٹر کار کا فارمولا انہوں نے آج دیا ہے، اور پرنٹنگ پریس کا فارمولا مارکونی نے آج دیا ہے. یہ سارے ویگیانک جتنے ہیں دماغ چلا چلا کر ساری چیزیں آج انہوں نے دی ہیں. 1000 سال پہلے تو فزکس کیمسٹری کا نام دنیا میں نہیں تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا. امریکہ کا پتہ کولمبس نے 1495 میں لگایا ہے، ہندوستان کا پتہ واسکو ڈی گاما نے لگایا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ آج سے 1000 سال پہلے وگیان، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ بات ہے میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ یورپ کا ایک دانشور جو پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے. وہ لچا لفنگا دانشور نہیں، اندھ بھکت نہیں، آنکھ بند کر کے کہنا کہ سورج نہیں ہے، وہ اندھ بھکت نہیں ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، دماغ چلاتا ہے، سچائی کا پتہ لگاتا ہے. وہ لوگ ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کہ یہ مائکروفون، یہ تو دماغ چلا کر کے 7 سمندر پار کا ڈیوڈ ہکس نے بنایا ہے. ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کمپیوٹر اور موبائل، یہ تو 7 سمندر پار کا دانشور بنایا ہے. ہندوستان کے لوگوں کو ناچنے کودنے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے، دوسروں کو ذلیل کرنے، بم پھوڑنے، راستہ روکنے، دوسروں کی غیبت کرنے، چائے کی چسکی لے کے دکان پہ اچھے لوگوں کی برائی بیان کرنے، اس میں کھینچ تان کر کے عیبیں نکالنے اور اس کو ذلیل کر کے حرام خوری کا الزام لگانے، اسے فرصت کہاں ہے؟ ہندوستان کا ہندو بھی وہ بھی اسی طرح سے ذلیل حرکتوں میں لگا ہوا ہے. اور ہندوستان کا مسلمان بھی جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اسی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اسی امام کے بھگانے کا پناہ 5 گھٹا کھینی لٹا کے چائے پی کر گٹکا کا پڑیا پھاڑ کے چسکی لے کے باتیں کر کے امام کے بھگانے کا تبصرہ کرتا ہے. اس سماج میں ایک بندہ زنا کر رہا ہے، اس کے خلاف نہیں بولتا ہے. ایک بندہ سود کھا رہا ہے، اس کے خلاف نہیں بولتا ہے. ایک بندہ حرام خوری کر رہا ہے، اس کے خلاف نہیں بولتا ہے. بولتا ہے کس کے خلاف؟ جو بھیک مانگ کر کے مدرسہ چلاتا ہے، جو دوسروں کے فطرہ مانگ کے مدرسہ چلاتا ہے. رمضان کے دن میں سارے مسلمان سیب سنترا کھائیں، دن میں آرام کریں، روزہ رکھیں، رات میں تراویح پڑھیں. یہ مولی صاحب بیچارہ مانگنی میں ماری ماری پھر رہا ہے. کبھی بھیونڈی، کبھی بھوونڈی، کبھی اندھیری، کبھی دادر، کبھی جوگیشوری، کبھی بھنڈی بازار، کبھی صاحب وسائی، کبھی بیرا روڈ، ماری ماری پھر رہا ہے. افطار کے ٹائم میں وہاں، سحری کے ٹائم میں وہاں، کیوں مارے مارے پھر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب مدرسہ چلانے کے لیے مالداروں کو آگے آنا چاہیے، زمین ڈونیٹ کرنا چاہیے، ان کو ایک تنظیم بنا کر کے مولانا سے کہنا چاہیے کہ آپ کو قرآن کا علم ہے، آپ مسند پر بیٹھ کر قرآن کا علم لیجیے، ہم کو اللہ نے دولت دی ہے، ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے. لیکن نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بھیک مانگ کے تم ہی لاؤ اور ہم کو سردار بنا دو اور پھر تنخواہ مانگنے ہم سے لے آؤ. یہ بتائیں اچھے عالم سب نکل گئے، اچھے لوگ مدرسہ سے نکل رہے ہیں. جب مدرسہ بند ہو جائے گا تو قرآن کون سنائے گا؟ تقریر کون کرے گا؟ جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ جمعہ کا خطبہ کون دے گا؟ عیدین کا خطاب کون کرے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ کون تیرے اختلاف کا فیصلہ کرے گا؟ جب کوئی نہیں کرے گا. اسی لیے عالموں نے سر پہ کفن باندھ لیا کہ جب اب ہم کو ہی چندہ کرنا ہے، اب ہم کو ہی پڑھانا ہے، ورنہ پبلک پہ چھوڑیں گے. یہ تو مدرسہ اجاڑنے پہ تلا ہوا ہے، یہ مدرسہ قائم کیا کرے گا؟ یہ تو مدرسے پہ تالا لگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے، یہ تو عالموں کو بھگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے. ان علماء کرام کو داد دیجیے کہ یہ اپنی عزت کو مٹی میں ملا کر، چونکہ ابھی میں خطاب کروں گا 2 گھنٹہ، ابھی آپ میرا ہاتھ چومیں گے کہ کیا زبردست بیان تو کر رہا ہے، لیکن جہاں میں ہاتھ پھیلا کے مانگ لوں 5 روپے ہم کو دو تو ساری عزتیں وہی مٹی میں مل جاتی ہیں. ہمارے یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، خطاب کرنے کے لیے آؤں دروازہ بھی کھلتا ہے، اسٹیشن لینے بھی جاتے ہیں، سٹکیس اٹھا کے لاتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں. لیکن جہاں میں مانگنے کا پروجیکٹ بنا لوں کہ میرے مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں چندہ چاہیے 10,000 روپے، بس ساری عزت بھی ختم. نہ کار کا دروازہ کھلے گا، نہ گھر کا دروازہ کھلے گا. مگر اس کے باوجود ان علماء کرام نے کہا اپنے لیے مانگنا ذلت ہے، اپنے لیے مانگنا ذلت ہے، مگر میں درسگاہ رسول کا دروازہ بند نہیں ہونے دوں گا، تعلیم قرآن کا سلسلہ رکنے نہیں دوں گا. اس لیے علماء نے رمضان کے دنوں میں سر پہ کفن باندھ کے شروع کیا کہ روزہ بھی رکھیں گے اور زکات و خیرات بھی تلاشن کریں گے. ہمیں عزت نہیں چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تعلیم چاہیے. بچوں کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، دین کا کام کرنا ہے. اسی لیے سارے لوگ گھر میں ہیں، یہ مارے مارے پھر رہے ہیں. ہر قدم کے بدلے میں ان کو اجر ملے گا کہ ان کی محنتوں سے مسجد کا نظام زندہ ہے، مدرسوں کا نظام زندہ ہے. ان کی وجہ سے
की मेहनतों से मदरसे का सिस्टम जिंदा है, इनकी वजह से मदरसा जिंदा है। तो ये अपने लिए अगर मांगे तो जिल्लत है, और अगर मदरसे के लिए मांगे तो बाहर से इज्जत है। इनका पांव धो के पी लेना चाहिए। ये हमारे पास आगे मेरे माल को भी पाक करने आया है, मेरे दिल को भी पाक करने आया है। हमको जाके देना था, मगर ये आगे मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं, और फिर दीन का काम भी कर रहा है। तो उनको गाली नहीं दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि तुम आए, तेरा शुक्रिया कि मुझसे ज़कात भी लेना है, फितरा भी लेना है, खैरात भी लेना है, और मेरे पास आकर के मुझको आपने पाक किया है, और फिर मदरसा चला रहे हैं, तालीम कुरान का सिलसिला आम हो रहा है। इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि जो मदरसा छोड़कर बिजनेस करने वाला हो वो हमारी हौसला अफजाई से बिजनेस छोड़ करके ये मदरसा चलाए। जब दुनिया में जिंदा रह के इबादत ही करना है तो डॉक्टर बनने के बाद भी 2 रोटी खाना है, मदरसा चलाने के बाद भी 2 रोटी खाना है, अब मर जाना है। तो नमाजें छोड़ के मरना और है, मदरसा चलाते चलाते कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और मरना, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मरना और है। वो मरना तो सबको है, बस शराब की भट्टी में मरना और है, जलसगाह में मरना और है। मरना तो सबको है, ज़िना करते करते मरना और है, सजदा करते करते मरना और है, फिल्म में नाचते हुए मरना और है, मदरसे में कुरान पढ़ते हुए मरना और है, हल चलाते हुए बेरोज़गार होकर मरना और है, हालते रोज़ा में दुरूद पढ़ते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, लेकिन वह मौत काबिल रश्क है जो अल्लाह का जिक्र करते करते आ जाए। वह मौत काबिल रश्क है जो मस्जिद में आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए। आज जो भी रुसवाई मुसलमानों की दुनिया भर में है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म न मानने की वजह से, सरकार दो जहां की बात न मानने की वजह से। वरना देखिए कुरान करीम का जलवा मुलाहजा कीजिए। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, मैंने तुझको कितनी नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी है कि गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। यह घोड़ा मैंने तुझको दिया है ताकि इस घोड़े की पीठ पर, जो कि आज से 200 साल पहले कुछ नहीं था, न कार, न मोटर कार, न हवाई जहाज। उससे पहले क्या था? घोड़ा था, एक जरिया जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। इससे पहले ऊंट था, जिस ऊंट पर हम सवारी का काम लेते थे। इससे पहले खच्चर और गधा था, खच्चर और गधे की पीठ पर सामान लाद करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये ऊंट, ये खच्चर, ये गधा, ये हमारी सवारी के लिए है, ताकि तुम्हारा चलना आसान हो जाए। वरना एक वतन से दूसरे वतन जाओगे, थक के चूर हो जाओगे। इसीलिए जानवर तुम्हारे लिए इसकी पीठ पे सवारी का काम है, और दरवाजे पे जानवर को बांध के रख ताकि तेरी जीनत का भी काम आए। जब दरवाजे पे 10 घोड़े बांधते रहते थे, जिस तरह आज 10 फॉर्च्यूनर दरवाजे पे रहे, फॉर्च्यूनर रहे, एर्टिगा रहे, इनोवा क्रिस्टा रहे, स्कॉर्पियो एम रहे, वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, सारी गाड़ियां सजी हुई हैं। उसी तरह आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे अरबी घोड़ा रहता था, साथ ईरानी घोड़े रहते थे, लाल कलर का घोड़ा, चितकबरा कलर का घोड़ा, पीला कलर का घोड़ा, वो दरवाजा हसीन लगता था। पहले आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे 100 गाय बंदी रहती थी, 50 भैंस बंदी रहती थी। शाम के टाइम में जब 100 गाय को चरा के चरवाहा जब गोल जानवरों को लाता था, पूरा समाज देखता था ये गाय किसकी जा रही है, ये जानवर का गोल किसका जा रहा है। 100 जानवर फला से साहब का, फला का। तो दरवाजे की जीनत पहले मवेशियों से थी, घोड़े से थी। तो अल्लाह क्या कहता है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, यानी ऐ लोगों, मैंने जिस तरह तुम्हारे लिए फल फ्रूट्स, खाना पानी सब पैदा किया, तो तेरी सवारी के लिए मैंने घोड़ा पैदा किया, तेरी सवारी के लिए मैंने ऊंट पैदा किया, तेरी सवारी के लिए मैंने खच्चर और गधे पैदा किया। लितरकबूहा वज़ीना, ताकि इससे तू सवारी का काम ले और जीनत का काम ले, दरवाजे की खूबसूरती का और सवारी का काम ले इससे। अब आगे अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने आज घोड़ा पैदा किया है, मैंने आज ऊंट पैदा किया है, मैंने आज खच्चर पैदा किया है, लेकिन जब वक्त बदलेगा, जब वक्त आएगा, तो मैं तेरे लिए वो सवारी पैदा करूंगा। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून। इस आयत करीमा को गौर से पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। अल्लाह क्या कहता है? यह कुरान नाज़िल हुआ 1500 साल पहले। 1500 साल से मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं, और उस वक्त में न साइकिल थी, न उस वक्त में मोटरसाइकिल थी, न उस वक्त में 3 व्हीलर, न 4 व्हीलर, न 100 व्हीलर्स की ट्रेन, न हवाई जहाज। हवाई जहाज 1903 में, ट्रेन की कहानी 150 साल पहले, साइकिल की कहानी 100 साल पहले। ये तमाम सवारियां
मिनिमम लेवल की सवारी है साइकिल और हाईएस्ट लेवल की सवारी है हवाई जहाज, अब बीच में है 3 व्हीलर और 4 व्हीलर और ट्रेन, ये सारी चीजें। मगर इस आयत करीमा में सारा चर्चा मौजूद है। अल्लाह कहता है आज तुमने तुम्हारे लिए मैंने ऊंट घोड़े पैदा किए हैं, वो यखलुकु का मतलब ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा। एक है क्रिएट पैदा करता है और एक है ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा। यखलुकु फिर मुजारे का सिगा, उसका मतलब पैदा करता है, पैदा करेगा। वो यखलुकु आज मैंने ऊंट दिया है और कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा हवाई जहाज, तेरे लिए पैदा करेगा मोटर कार, तेरे लिए पैदा करेगा रॉकेट, तेरे लिए पैदा करेगा 3 व्हीलर। वो यखलुकु मा ला तालमू, जो कुछ तुम नहीं जानते हो अल्लाह उन सवारियों को तेरे लिए पैदा करेगा। तो इस आयत करीमा में कयामत तक जितनी भी सवारियां पैदा होगी सबका जिक्र लफ्ज़ मा में मौजूद है। वो यखलुकु मा ला तालमू, जो आज साइंसदानों के दिमाग में नहीं है। आज से 100 साल के बाद जो जो सवारियां पैदा होंगी, जिस तरह से आज फ्लाइंग कार यानी कार से जा रहा हो, सामने ट्रैफिक है, गड्ढा है, एक गियर दबाए जहाज की तरह कार उड़ने लगे, फिर जब नॉर्मल सड़क आ जाए उसको जमीन पे ले आए और चलने लगे, वो सवारी पैदा हो चुकी है, उसका तजर्बा हो चुका है। आने वाले वक्त में मार्केट में लॉन्च होने वाली है वो सवारी। इसके बाद भी अजूबा सवारी, जिस तरह की 2 व्हीलर यानी साइकिल में मोटर कार फिट हो जाए, ये साइकिल जरूरतन गड्ढा पार करने के लिए फ्लाई करने लगे। ये सारी चीजें 100 साल के बाद पैदा होंगी। जैसे 100 साल पहले मोटर कार का तस्वुर नहीं था, लेकिन आज वो सारी सवारियां आ गई। तो यखलुकु मा ला तालमून में कयामत तक तमाम सवारियों का चर्चा मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान पाक फाउंटेन ऑफ नॉलेज भी है, माउंटेन ऑफ नॉलेज और विजडम भी है। साइंसदान 10 साल मेहनत करके जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो बातें वजाहत के साथ कुरान पाक में 1500 साल पहले से मौजूद नजर आती है। यही वजह है कि तुम्हारा बच्चा काफिरों के पास चला जाए, तुम्हारी बेटियां काफिरों के साथ भाग जाए, और अमेरिका का वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा है। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े। चाइना जापान का कोई जमीन जिंदा जिसका है, ये कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न बने। इसलिए कि सोशल मीडिया में जो हंगामा है मुसलमानों भी जीना तंग हो रहा है, मगर एक खामोश तकलीफ है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, साइंस जवान हो रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। है नूरे फदा कुफ्र की हरकत पे खंदाज़र, फूंकों से चराग बुझाया जा जाएगा। मैं आपको एक दलील की बात और बताता हूँ। आज आप मायूस हैं, नर्वस हैं, हाँ नर्वस तो रहेंगे। मस्जिदें वीरान होंगी, नर्वस होंगे। मदरसा उजड़ेगा, आप नर्वस होंगे। मदरसा वाला ठीक मांग रहा, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा को पढ़ाइए, बच्चा को पढ़ाइए। जो मकसद हयात है उसके लिए स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। क्रिश्चियनों के स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, नो एडमिशन, वहां साहब कोई एडमिशन नहीं होगा, वहां नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। यानी अब 3 साल तक एडमिशन क्लोज्ड है। इतने लोग क्यू में लगे हुए हैं, इतनी अच्छी तालीम शहर की होती है कि कोई आदमी वहां साहब हर आदमी अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाह रहा है। सेंट जेवियर्स में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज्ड है। साहब विद्या विहार में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज्ड है। और मदरसे में कल मदरसा बंद होने वाला है, तो आज भी दाखिला चालू रहता है। क्यों चालू रहता है? क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। मुदर्रिस को बोला जाता है तुम देहात से बच्चे को 10 बच्चे को लाएगा, तेरी तनख्वाह 10,000 है तो 12,000 में कर दूंगा, बच्चे के एतबार की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यानी अब हमको मदरसा चलाने के लिए बोरो मांगना पड़ता है। और साल भर एडमिशन ओपन है, वहाँ क्रिश्चियनों के स्कूल में एडमिशन क्लोज्ड है। यानी जब ये टेंडेंसी बन जाएगी कि मदरसे में पढ़ाने से क्या होगा, मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, मदरसा चलाने का शौक है, मुतवल्ली बनने का शौक है, सेक्रेटरी बनने का शौक है, कैशियर बनने का शौक है, मगर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का शौक नहीं है। कैशियर है मगर उनका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। क्यों? ए मौलवी साहब, अपने गांव देहात से अपना चचेरा मेरा भाई को लाओ, वो मदरसे यतीम खाना है, ये अनाथालय है, यतीम का बच्चा पढ़ेगा, गरीब मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा। जब ये टेंडेंसी तुम्हारी हो जाए कि मदरसे में सिर्फ गरीबों का बच्चा पढ़ेगा और तुम्हारा बच्चा दीन सीखने के नाम पे कुछ नहीं सीखेगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर
डॉक्टर बन के तो पैसा कमाने वाला बनेगा। ये बता दे मदरसा तो उजड़ेगा ही। आज मदरसे में भीख मांगी जा रही है बच्चों की, क्योंकि कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा, ना कोई मास्टर पढ़ाना चाह रहा, ना कोई इंजीनियर पढ़ाना चाह रहा, ना कोई टीचर पढ़ाना चाह रहा। चलो जहन्नम में तो 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। बस इसी से जोड़ लीजिए, मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा का पैगाम सच्चा, हुजूर ने जो कहा वो बात सच्ची। अपने मन में मिट्टू बनते रहिए कि हम जन्नती हैं। और वहां पता चला कि जो टेंडेंसी, जो सोच समझ है, उस सोच समझ के एतबार से ठिकाना जहन्नम बना हुआ है। 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएगा, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर शराब बढ़ रही है, ज़िना बढ़ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया का विनाश करीब आ रहा है, क़यामत करीब आने वाली है। जब क़यामत आएगी तो शरीरों पे क़यामत आएगी। क़यामत करीब आएगी उस वक्त जबकि कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब हमने मकान बना लिया, अल्लाह का ऊपर फजल है, हमने तरक्की कर लिया है। और हुजूर क्या कहते हैं, जब देखना कि बकरी का चराने वाला, नंगे पांव रहने वाला, या ततावलूना फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों पे इतराने लगे, तो समझ जाना कयामत करीब आ गई है। वो हदीस जिब्रील जिस तरह सूरह फातिहा कुरान में है, उसी तरह हदीस जिब्रील अहादीस के भंडार में है। उस हदीस जिब्रील में आया है, जब जनाबे जिब्रील आदमी की शक्ल में आके हुजूर से पूछा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, और क़यामत की अलामतों के बारे में पूछा, तो हुजूर ने कहा था अंतलदल अमतो रब्बतहा, जब देखना कि माए अपने मालिक को जन्म दे रही है, यानी नाफरमान औलाद जो माँ को नौकरानी समझे, जब और नाफरमान औलाद जन्म देते हो पाने लगे, तो समझ जाए कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। और एक दूसरी निशानी हुजूर ने बताया कि जब देखना कि नंगे पांव रहने वाला, बकरी का चराने वाला, यानी जिसका बाप नंगा पांव रहता था, जिसका बाप दूसरों की गाय चराता था, जिसका बाप नंगे पांव बाजार जाता था, जिसके पास इतना पैसा नहीं था कि चप्पल खरीद सके, ये नंगे पांव रहने वाला आज क्या बोलते हैं, अरे मेरे बाप को तो नहीं था, आज हम कार पे चल रहे हैं, मेरा बाप बेचारा गरीब था, आज हम साहब 5 रूम का मकान जबरदस्त बना लिए है, मेरे बाप के पास तो नहीं था, वो तो नौकरी करते थे, आज हमने साहब एर्टिगा खरीद लिया है। ये क्या है, ये बोलते हैं फजल इलाही है, ये क्या बोलते हैं, एहसान है। और हुजूर क्या कहते हैं, जब देखना नंगा बदन, नंगे पांव, बकरी का चराने वाला ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करे, तो समझ जाना कयामत करीब आ गई है, यानी ये अलामाते कयामत है। तो मकान बनाना ये फजल इलाही नहीं है, गाड़ी खरीदना ये फजल इलाही नहीं है। फजल इलाही क्या है, मुत्तकी बनना, तकवा को इख्तियार करना, नमाजी बनना। जब मकान बने अब किरदार ना हो, ये अल्लाह का अज़ाब है। वरना फिरौन को क्या कहेंगे, नमरूद को क्या कहेंगे, हमानुश शताब को क्या कहेंगे, टाटा बिरला को क्या कहेंगे, जिंदल मित्तल को क्या कहेंगे, मुकेश अंबानी को क्या कहेंगे, अमेरिका के एलन मस्क को क्या कहेंगे। पता ये चला ये सोच हमारी जो है वो टेढ़ी सोच है कि डेवलपमेंट है, तरक्की है, सड़कें बन रही है, 24 घंटे बिजलियां हैं, मकान बन रहा है, मॉल बना रहे हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माइन। मुस्तफा कहते हैं हमारे पैगंबर, अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह काफिरों को एक घोंट पानी तक नहीं देता, एक घोंट पानी तक काफिरों को नहीं मिलता। अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक होता, मच्छर तो ऐसे ही छोटी मखलूक है, उसका पर कितना बारीक है। हुजूर ने क्या कहा, लौ कानती दुनिया इन्नल्लाहि जनाह बऊदा, यानी मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नजदीक होती तो अल्लाह काफिरों को एक घोंट पानी तक दुनिया से नहीं देता। अब जबकि उसको खरपति बना रहा है, अरबपति बना रहा है, वो साफ खरबपति बन रहा है, महासंखपति बन रहा है। इसका मतलब है मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है यह दुनिया, इसीलिए अल्लाह जलीलों को, दुश्मनों को ज्यादा दुनिया देता है। कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह फरमाता है लौला अन यकूना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम
सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा। खूब इधर उधर की चिकनी चपड़ी कहानी कॉमेडी कहानी खूब चल रही है, लेकिन ये कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह फरमाता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलतें काफिरों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। हमारा बच्चा काफिरों का मकान देख करके ही नर्वस होता है, उनकी चमक दमक देख करके ही उनके पीछे हमारी बेटियां भाग रही हैं, उनकी नौकरी, उनका माल, उनका मकान, उनका डेवलपमेंट। मुसलमान बेचारा गाय बेचे, बैल बेचे, साइकिल बेचे, साहब चप्पल बेचे, हाजी अली में रुमाल बेचे, इस अरब सऊदी अरब जाके ऊंट चराए, बकरी चराए, वहां जाके मजदूरी करे, लेकिन वहां और वहां तो साहब कंपनी है, फैक्ट्री है, मानो दौलत है, इंडस्ट्रीज उसके पास मौजूद है। तो अल्लाह ने क्या कहा? जरा देखो गौर से, कुरान शरीफ में एक सूरत का नाम सूरह ज़ुख़रुफ़ है। ज़ुख़रुफ़ के माने है डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ़ के माने होते हैं गोल्ड, ज़ुख़रुफ़ के माने होते हैं ऑर्नामेंट। इसीलिए कहा गया कुरान पाक की तिलावत से दिल नर्म होता है, कुरान पाक की तिलावत से आंखें आंसू बहाती हैं, कुरान पाक की तिलावत से आदमी आजिज़ व खाकसार बनता है, कुरान पाक की तिलावत करने से आदमी दीनदार बनता है। जब कुरान पढ़ेगा तब नहीं, कुरान समझेगा तब नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो अल्लाह काफिरों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। अभी तुम फैक्ट्री देख के पागल हो रहे हो, अल्लाह इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। ये कोई मौलवी साहब, ये कोई आला हज़रत नहीं कह रहे। कुरान शरीफ में वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के दरवाजे, विंडोज और डोर अल्लाह सब सोने चांदी की बना देता। 26वें पारे में ज़ुख़रुफ़ नाम की सूरत ही है। ज़ुख़रुफ़ के माने होते हैं ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ़ के माने होते हैं गोल्ड, सजावट। अल्लाह इतनी दौलत किनको देता? जो अल्लाह को गाली देता है, जो अल्लाह को एक नहीं मानता है, जो बोलता है कि कोई खुदा नहीं है, नास्तिक है। अल्लाह कहता हम इन नास्तिकों को, अपने दुश्मनों को इतनी दौलत दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अगर ऐसा कर देते तो दुनिया का कोई एक बंदा मुसलमान नहीं बचता। वो सब इनकी मकान की छतें, इनके दरवाजे, इनके सोने चांदी के फर्नीचर देके सब काफी हो जाता। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। मगर अल्लाह आगे फरमाता है अगर हम ऐसा कर भी दें, मुशरिकों के मकान को चांदी सोने का बना भी दें, तो कितने दिन तक उस मकान में रहेगा वो? 70 साल, 80 साल, 70-80 अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है, तो 70-80 साल 1 मिनट, तो कितने दिन तक रहेगा? उसके बाद कहा जाएगा, उसके बाद तो फिर मेरे पास आएगा, हम बता देंगे कि दुनिया में तुम कैसे जी हो, अब जहन्नम की आग में चला के बता देंगे। और अल्लाह फरमाता वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, अल्लाह कहता है ए मुसलमान, आखिरत की सारी नेमतें, सोने चांदी का सारा मकान, हद निगाह तक जन्नती का अपना घर, 70-70 हुरे, पाकीज़ा शराब और दूध की नहरें, वहां की जो तसव्वुर में ना आने वाली नेमतें हैं, वो सारी नेमतें उनके लिए महफूज है जो दुनिया में अल्लाह से डरेगा, अपना दामन दुनिया से बचाएगा। वो 70-80 साल 1 मिनट की तरह गुजर जाएंगे और सदा की जन्नत अल्लाह उसकी तकदीर में लिख देगा। अल्लाह फरमाता आखिरत की सारी भलाई नेक लोगों के लिए, मुत्तकीन के लिए है, जो दुनिया में सब्र करेगा, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा, जो दुनिया में काफिरों की दौलतों को देखकर ललचाई निगाह से न देख के उसकी तरफ माइल नहीं होगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए अपने घर आखिरत का चर्चा करना होगा, नेक लोगों का चर्चा करना होगा, हुजूर का जिक्र करना होगा। कि सरकार के घर में 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा जो सरकार के दामाद, सरकार की बेटी है, उनके घर में 3 दिन से फाका है, मगर जो यहूदी के यहाँ से आटा कर्ज ला के रोटी बनी थी, ये यतीम मिस्कीन और तैयब को दे दिया गया। उनके घर में फाका था। सरकार दो जहां जिस बिस्तर पे सोते थे उसके निशानात आपके जिस्म अक़दस पे उभर आते थे। ये सारी चीजें कहने सुनने के लिए हैं। बाकी काफिरों की तरफ मकान सजाइए, जन्नत तो पक्की है, दुनिया में भी आराम से रहिए और जन्नत पक्की है। यहाँ नमाजें छोड़िए, जन्नत पक्की है। यहाँ काफिरों की तरफ लंदनाते हुए रोजी की तलाश में
کرتے رہیے، ساری نمازیں قضا کر کے چھوڑ کر کے، آج جنت پکی ہے، دنیا بھی رہے اور جنت بھی پکی رہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان لاؤ، اچھا کام کرو گے، میرے محبوب کی غلامی پیروی کرو گے تو یہاں بھی عزت و راحت دیں گے اور مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ تو مسلمان مشرکوں کو دیکھے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھائے اور اپنے گھر میں روزانہ دین کا چرچا کرے۔ اگر گھر میں انیتاب کا چرچا ہوگا تو بچہ کا ہیرو ہونا طے ہے، اگر گھر میں کرینہ کا چرچا ہوگا لڑکیوں کا کافروں کے ساتھ بھاگنا طے ہے، اگر گھر میں غوث کا چرچا ہوگا، خواجہ کا چرچا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا چرچا ہوگا، حسن کریمین کا چرچا ہوگا، متقین کا چرچا ہوگا، صالحین کا چرچا ہوگا، قرآن پاک پڑھنے والوں کا چرچا ہوگا، ائمہ مجتہدین کا چرچا ہوگا۔ تو جس طرح فلم کے ایکٹر کا چرچا ہو تو فلمی ایکٹر بننا طے ہے، اسی طرح صالحین کا چرچا ہو تو بچوں کا جنتی نیک بننا طے ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول پیدا کیجیے، روزانہ اپنے گھر میں بزرگان دین کا چرچا کیجیے، 5 منٹ کے لیے صحیح ضرور اپنے بال بچوں کے سامنے بزرگوں کا چرچا کیجیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 لوگ تھے کہ ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے اور اپنی گردن کٹا دیں گے، آپ خلافت کا لگام سنبھالے رکھیے۔ مگر امام حسن نے مسلمانوں کو خون ریز جنگ سے بچانے کے لیے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا، خود درویش کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے مدینہ شریف آ گئے۔ جب مدینہ شریف آ گئے تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ شیم شیم کہنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا شرم ہے، یا مسلمانوں کے لیے شرم ہے۔ کیوں؟ 40,000 عرب ان کی طرف سے لڑنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے بزدلی دکھا کر کے امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور بزدل بن کے مدینے میں آ گئے۔ کیا کہنے لگا؟ آر المسلمین، آر المسلمین ہے، وہ ٹنکا بجانے والا مولائی ہو گیا اور صرف امیر صحابی رسول کو گالی دینے والا مولائی ہو گیا۔ جب تک جہالت بڑھے گی تب تک اسی طرح سے نئے نئے فتنے پیدا ہوتے جائیں گے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، ایمان بچانا ہے تو اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر سے اپنے آپ کو قریب رکھنا ہوگا، ورنہ جاہلوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تازیہ لے کے بیٹھی ہے، جو صاحب اگادان لے کے بیٹھی ہے، جو لہمان اور اگربتی لے کے بیٹھی ہے، جو مذہب کی چادر لے کے بیٹھی ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ نماز روزہ کچھ رکھنا نہیں، چرس پینا ہے، چرسیوں اور صاحب چرس پینے والا، افیم پینے والا، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مولائی ہوں، میں مولا علی کا دیوانہ ہوں۔ مولا علی کو جس دن پڑھ لے گا ساری باتیں بھول جائے گا۔ مولا علی صابرین کے سردار ہے، مولا علی بہادروں کے سردار ہے، مولا علی سچے عاشق رسول ہیں، مولا علی صدیق عمر عثمان کی قدر کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اپنا امام ماننے والے ہیں۔ یہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج یہ ناچنے والا، ڈھول بجانے والا، یہ اپنے آپ کو مولا علی کا وفادار سپاہی کہتا ہے، ریکارڈنگ بجا کے، گانا بجا کے، قوالی بجا کے، اصحاب علی علی کر کے یہ ساتھ مولا علی کے وفادار بن رہے ہیں۔ مولا علی علی کرنے سے وفادار نہیں ہوگا، جو مولا علی کی سیرت پڑھے گا، جو ان کی تاریخ پڑھے گا، جو ان کی سیرت پہ عمل کرے گا، وہ سچا مولائی ہوگا۔ ذرا دیکھیں مولا علی کا بیٹا امام حسن، امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی۔ اگر حضرت امیر معاویہ مجرم ہے، حضرت امام حسین کے قتل کے معاملے میں انہوں نے یزید کو خلافت دی، اس سے بڑا مجرم امام حسین کو قرار دیا جائے گا۔ نہ امام حسین امیر معاویہ کو خلافت دیتے، نہ امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناتے، نہ یزید امام حسین کا قتل کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ سے بڑا مجرم امام حسن ہے جنہوں نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی۔ تو ان کی سوچ سے دیکھیں گے یہی نظر آئے گا، لیکن اگر اسلامی سوچ سے دیکھیں گے، حدیث کی سوچ سے، حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اگر خلافت دے دی ہے، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اگر بے لگام ہو جائے، اہل بیت کا قاتل ہو جائے، اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر رسول ہے، رسول اولو العزم رسول ہے، ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہا، کافر مرا، تو اب اولو العزم رسول کا بیٹا جب کافر کا
काफिर रहा। तो फिर एक सहाबी का बेटा अगर अहले बैत का कातिल होकर फासिक हो गया, ताज्जुब की क्या बात है। जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा, जो अपने दिमाग पे सोचेगा, वो तबाह व बर्बाद होगा। लेकिन जो कुरान पढ़ेगा, लेकिन जो हदीस पढ़ेगा, जिन्होंने कुरान हदीस को समझा, उन बुजुर्गों को पढ़ेगा, वो तबाह व बर्बाद ना होगा। जब इमाम हसन ने खिलाफत दे दी, मदीना आ गए, खामोश दुर्वेश की तरह जिंदगी बसर करने लगे। लोगों ने कहा ये आरुल मुस्लिमीन है, मगर इमाम हसन ने क्या जवाब दिया? ए मुसलमान, जरा गौर से सुन लेना, ये मत कहना कि अब तो ऐसी जिंदगी गुजारे कि हम दुनिया ना कमाएं, दौलत ना कमाएं, दुनिया में ना रहे। ऐसा नहीं है। दुनिया की मजम्मत इसीलिए की जाती है जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए, जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए। लेकिन जो आखिरत के साथ दुनिया कमाए, नमाज के साथ हलाल रोजी कमाए, नमाज के साथ महल बनाए, नमाज रोजे के साथ गाड़ियां खरीदे, हज और ज़कात के साथ खुशहाली की जिंदगी बसर करे, उसकी मजम्मत नहीं है। मजम्मत उसकी है जो जन्नत छोड़ के सिर्फ दुनिया को आबाद करना चाहे। इमाम हसन को जब लोगों ने कहा आरुल मुस्लिमीन, तो इमाम हसन को गुस्सा नहीं आया। इमाम हसन अपने लोगों को लेकर उसको मारने नहीं गए कि तुम क्यों हमको बोले आरुल मुस्लिमीन है। नहीं, इमाम हसन ने क्या कहा? अल-आरु खैरुम मिनन नार। इमाम हसन ने कहा आर नार से बेहतर है। यानी दुनिया में भले ही तुम मुझको आरुल मुस्लिमीन कह दो, ये मुसलमानों के लिए शर्म है, मगर ये आर आखिरत की नार से बेहतर है। दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई से बेहतर है। ये मकूला हर मुसलमान अपनी जिंदगी में अमल कर ले। अगर हराम का 1 करोड़ का पैसा 1 करोड़ की दौलत मिल रही है, तो हलाल का 1 रुपया कबूल कर ले और 1 करोड़ हराम पर थूक दे और कहे ये हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। यही फिक्र रसूल है, यही फिक्र इमाम हसन है, यही फिक्र इमाम हुसैन है, यही फिक्र अली है, यही फिक्र औलिया और सालिहीन है। यही कुरान और हदीस का कहने का मकसद है। इससे हट के जिएंगे, अपना मन लाएंगे सामने, नफ्स की बात सामने लाएंगे, तो नफ्स के गुलाम बनिए। अगर हुजूर के गुलाम बनना है, जो हुजूर ने कहा है वो बात सच्ची है, जो कुरान ने कहा है वो सच्चा है, जो सरकार ने कहा वो सच्चा है, और जिसने कुरान हदीस को समझा है वो सच्चा है। इस फित्नो फसाद के वक्त में हम तो सारी हदीस तफसीर तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जिसने समझा है उसी का दामन थाम लीजिए। अगर मस्जिद का इमाम हदीस कुरान का जानकार है, तो अपनी मस्जिद के इमाम की बात मानिए, उनकी तकरीर सुनिए। आप बोलिएगा कि पाकिस्तान का फला डॉक्टर ये बोल रहा है, पाकिस्तान का फला इंजीनियर ये बोल रहा है, पाकिस्तान का फला मौलवी ये बोल रहा है, तब तो पागल हो जाएगा। इसलिए अपने इमाम से रब्त रखिए, अपने इमाम की बातें सुनिए। और इस फित्ना फसाद के वक्त में सरकार आला हज़रत खातून बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो मसलक है, ये मसलक सीधा सच्चा सिराती मुस्तकीम वाला मसलक है। अगर इनसे हटे तो मुमकिन है कि खारिजी होके मर जाए, मुमकिन है कि राफिजी होके मर जाए, मगर आला हज़रत का मसलक मजबूती से थामे रखे, जो कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में जो मजहब इस्लाम की सच्ची तर्जमानी जो मसलक कर रहा है, इसका रास्ता इसकी रस्सी में थामे रहे, तो फिर न खारजी बनेंगे न राफिजी बनेंगे, सुन्नी सहीहुल अकीदा बन के सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता इख्तियार करेंगे। जैसे आला हज़रत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सिर्फ फातिहा मिलाद लेके उन बिदअतियों की तरफ बैठे, नमाज छोड़ा तो सीधे जहन्नम। वहाबी की तरह सिर्फ नमाज लेके बैठे, हलाल चीजों को छोड़ा तो सीधे जहन्नम। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हज़रत। फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जो ईद मिलाद का जुलूस भी निकलेगा, नमाज रोजे की पाबंदी भी होगी, लंगरे गौस भी खाया जाएगा, पाबंदी के साथ तरावी की नमाज भी अदा की जाएगी। यानी फर्ज को फर्ज समझा जाएगा और नफल को नफल समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज से बड़ा दर्जा दे दिया जाएगा। फातिहा नफल है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस नफल है, लंगरे गौसिया नफल है, घर मकान की लाइटिंग नफल है, मज़ारात की हाज़िरी नफल है, मगर नमाज पंजगाना फर्ज आज़म है। नमाज पंजगाना का छोड़ना गुनाह आज़म है। सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, तो सबसे बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ना। इसलिए जो कहता है कि दरगाह मिलाद फातिहा जुलूस मोहम्मदी लेके बैठिए, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी जहन्नम
جہنم کا راستہ ہے، اور جو کہتا نماز روزہ ہے فاتحہ میلاد حرام ہے وہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ یہ بیچ کا راستہ ہے، مسلک اعتدال، مسلک اعلی حضرت کہ فاتحہ بھی ہوگی، نماز پنجگانہ بھی ادا کیا جائے گا، لنگر غوثیہ بھی کھایا جائے گا، رمضان کا روزہ بھی رکھا جائے گا، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا، نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کیا جائے گا۔ یعنی فرض کو فرض مانا جائے گا، نفل کو نفل مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو کہ نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جائے، اب فرض کو آپشنل درجہ دے دیا جائے۔ جلوس دستار بندی کا جلسہ نفل ہے، پگڑی پہنانا نفل ہے، ہار مالا ڈالنا نفل ہے، نماز عشاء پڑھنا فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب جلسہ ہے نمازی غائب ہے، کارڈ چھپائی ہے نماز غائب ہے، روم سجانا ہے نماز غائب ہے، اپنے گھر سماج کی پھوپھی چچی ممی بپو میری چچے کی بہن کو بلانا ہے نماز غائب ہے۔ نہیں، جو فرض ہے وہ سب سے سپہ اول ہے، نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا، فرض ادا کریں۔ یہی حقیقی اسلام ہے، یہی حقیقی اہل سنت ہے۔ اس کے علاوہ من کی باتیں مانیے، من کی باتیں اتخذ الہہ ہوا، کافی لوگ اپنے نفسانی خواہش کو خدا بنا لیا۔ نفس کی نہیں ماننا ہے، مصطفیٰ کی ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پاک پر عمل کرنے، قرآن پاک جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے اس درسگاہ کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔